کہ اقبال اپنی شاعری میں بار بار تقلید کے اوپر گفتگو کرتے ہیں اور اس کو ایک منفی چیز سمجھتے ہیں۔ اقبال کے ہاں تقلید سے کیا مراد ہے؟ کیا اقبال حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی ہونے کو غلط سمجھتے ہیں؟ کیا وہ ابن تیمیہ کے نظریات کے قریب ہے، یعنی وہ غیر مقلد؟ پاکستان میں اقبال کو پاکستان کی ریاست نے جس انداز میں پیش کیا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی بہتری کی گنجائش ہے اور اقبال کی شخصیت کے باقی رخ پاکستان کے لوگوں کے سامنے آنے چاہیے؟ روایتی گفتگو سے نکل کے، گھسے پٹے جملوں سے نکل کے، کلیشیز کو ایک طرف چھوڑ کے، آج کے پاکستان میں اقبال کی ریلیونس، ان کی اہمیت ہے؟ خواتین حضرات، میں سمیر احمد ریالٹی بائٹس کے ساتھ حاضر ہوں اور ہم گفتگو کر رہے ہیں جناب عمر جاوید کے ساتھ اقبال پر، ان کے نظریات پر، ان کی لیگیسی پر۔ عمر جاوید مورخ ہیں، مصنف ہیں، صحافی ہیں، ساتھ ساتھ یوٹیوب پہ اپنا پوڈ کاسٹ کرتے ہیں ری تھنک ود عمر جاوید کے نام سے۔ عمر، دوبارہ خوش آمدید۔ ہم اپنے گفتگو کے سلسلے کو بڑھاتے ہیں۔ ہم نے اقبال کے سیاسی نظریات پر تو بات کی، اب میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے ان کے ذاتی یا مذہبی نظریات کے اوپر۔ عمر، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اقبال اپنی شاعری میں بار بار تقلید کے اوپر گفتگو کرتے ہیں اور اس کو ایک منفی چیز سمجھتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بتائیے کہ اقبال کے ہاں تقلید سے کیا مراد ہے؟ کیا اقبال حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی ہونے کو غلط سمجھتے ہیں؟ کیا وہ ابن تیمیہ کے نظریات کے قریب ہے، یعنی وہ غیر مقلد ہونا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو یہی میسج دے رہے ہیں کہ ہمیں تقلید چھوڑ دینی چاہیے چاروں اماموں کی؟ لیکن ڈاکٹر صاحب، اگر ہم ان کی باتوں کو اس طرح دیکھیں تو لگ تو یہی رہا ہے کہ وہ تقلید کے جو ہے وہ خلاف تھے، اور ظاہری بات ہے کہ ان کا اس وقت قابل ہم ایک ایسے مسلمان کے طور پر ہی جب ہم ذکر سرا کر رہے ہیں اقبال پر، تو ایسے مسلمان کے طور پر ہی کر رہے ہیں نا کہ جس کو ویسٹرن فلسفی کا بھی اچھا بھلا ادراک تھا، جو ویسٹرن فلسفی پڑھ چکا تھا، جو ویسٹرن فلسفی کی جزویات ہیں جہاں سے ویسٹرن فلسفی جنریٹ ہوئی ہے، گریک جو فلسفی ہے وہاں سے، ان کو بھی اس کا اچھا بھلا شعور تھا۔ تو ظاہری بات ہے ایک طرف یہ ویسٹرن فلسفی کا شعور ہونا، اور پھر اپنی جو ان کا یہ اسلام کے سارا اسٹڈی تھی، مطالعہ تھا، اس کا سارا شعور ہونا، تو اس کے بعد یہ پھر جو چیز سامنے آتی ہے تو اس میں ان کی تھاٹ اس روایتی مسلمان کی نہیں ہوگی جو صرف مدرسے سے ہی جس نے تعلیم حاصل کی ہے، مدرسے سے جس نے پڑھا ہے، یا مدرسے سے نہیں پڑھا تو جس نے روایتی طور پر صرف جو ہے وہ مذہب کا مطالعہ کیا ہے۔ تو یہ چیز اصل میں جو ہم نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں آپ نے ذکر کیا کنفیون کا، یہ وہ کنفیون تھی کہ ظاہری بات ہے ایک آدمی جو اچھا بھلا ویسٹرن فلسفہ ہی پڑھ گیا ہے، جس نے پینیٹریٹ کیا کئی، جو نٹشے جس کو پورا پتا ہے، کانٹ جس نے پڑھا ہے، جس نے گولٹے کا مقابلہ پڑھا ہے، برگسن کا مطالعہ کیا ہے، کارل مارکس کو جانتا ہے، تو پھر ظاہری بات ہے اس کے اندر وہ والی روایتی تھاٹ جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ لیکن آج کے اگر ہم سینیریو کی بات کریں، آج جس ہم عہد میں بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان، انڈیا، جہاں اقبال کو ہر کوئی اپنے اپنے مقصد کے لیے یوز کر رہا ہے، تو اس میں جو آپ یہ والا پہلو کہہ رہے ہیں نا کہ تقلید نہیں ہونی چاہیے، اس پہلو کو میرا نہیں خیال شاید ہاتھوں پر گننے والے عالم ہوں گے جو استعمال کرتے ہوئیں گے اقبال کے اس پہلو کو زیادہ استعمال نہیں کیا جا رہا اقبال۔ صحیح، درست۔ اچھا عمر، اب یہ بتائیے کہ آپ نے ابھی بولا کہ اقبال کو لوگ اپنے انداز میں پیش کرتے ہیں اور اپنے مقاصد کے لیے پیش کرتے ہیں، تو پھر جی، پاکستان میں اقبال کو پاکستان کی ریاست نے جس انداز میں پیش کیا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی بہتری کی گنجائش ہے اور اقبال کی شخصیت کے باقی رخ پاکستان کے لوگوں کے سامنے آنے چاہیے؟ بالکل آنے چاہیے، لیکن میں پہلے اس بات کی وضاحت کر دوں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہے ڈاکٹر صاحب کہ اقبال کو کس طریقے سے ہر اسکول آف تھاٹ اپنے مطلب کے لیے یوز کرتے ہیں۔ یہ تو ابھی ہم نے ذکر کر لیا ابھی پچھلے پوڈ کاسٹ میں کہ انڈیا کے اسکولوں میں، کالجوں میں آج بھی یہ نغمہ سیکنڈ نمبر پر پڑھایا جاتا ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اور پھر خود جس طریقے سے نہرو اور اقبال کے درمیان آپس میں کورسپونڈنس ہوتی تھی، ملاقاتیں ہوتی تھی، نہرو لاہور آتے تھے، اقبال سے ملاقات کرتے تھے، پھر نہرو نے اپنی کتاب ڈسکوری آف انڈیا میں لکھا ہے خود اقبال کے حوالے سے، اقبال کی تھاٹ کے حوالے سے۔ تو ایک تو انڈیا میں شروع کے نیشنلسٹ پیریڈ میں جس طریقے سے اقبال کو استعمال کیا گیا، جو کمیونسٹ ہیں وہ اقبال کی کس شاعری کو استعمال کرتے ہیں، جس کھیت سے نہ ہو میسر دہقاں کو روزی، کارل مارکس کے حوالے سے جو اقبال کی تعریف ہے، اینٹی کیپٹلسٹ وے سے، اینٹی کیپٹلزم جو اقبال نے چیزیں بولی ہیں، لکھی ہیں، اس کو استعمال، لینن خدا کے حضور کی وہ بات کرتے ہیں، اس کو لیفٹسٹ اس طرح سے بھی یوز کر رہے ہیں۔ پاکستان پر آ جائیں آپ، پاکستان میں ریاست ہی نہیں، آپ چیک کر سکتے ہیں، اور میں نے خود اس پر کہا، ایوب دور سے آپ دیکھ لیں، ایوب خان کے دور سے دیکھ لیں،
जिस तरह उस वक्त की रूलिंग एलीट एजेंडा चाहती है ना, वो इकबाल की वो वाली शायरी के हिस्से निकाले। हम्म। इकबाल अयूब को जिस तरीके से अपने यहाँ वो जरूरत थी, अयूब जिस तरीके से वो रिफॉर्म्स करने की कोशिश कर रहे थे, ये शादी के मामला, तलाक के मामला में, इस तरह का जो इश्यूज होते हैं इन पर, तो वो इकबाल के ऐसे पहलुओं को जिसमें थोड़ी सी हमें प्रोग्रेसिव अप्रोच नजर। भुट्टो हम्म। दौर में कौन सा इकबाल सामने आ गया? भुट्टो दौर में आप टीवी रेडियो पर देखेंगे तो वो इकबाल के जिस खेत से ना हो मैसर दहका को रोजी, क्योंकि वो भुट्टो साहब के इस्लामिक सोशलिज्म के तस्वर को प्रवान चढ़ाना था। जनरल जिया के दौर में कौन सा इकबाल सामने आ गया? मर्दे मोमन वाला। ठीक है जी। उसके बाद आप देखें मुशर्रफ के दौर में, मुझे याद है तब तो, बल्कि खुद हमने देखा था, वो पढ़ने की जरूरत नहीं, खुद हम देख रहे थे कि जब मुशर्रफ का एनलाइटेंट मॉडरेशन का तस्वर था, एनलाइटेंट मॉडरेशन का वो तस्वर दे रहे थे, तो उसके लिए वो कौन सा इकबाल सामने आ गया? वो है ना, मैं अपनी इतनी शहरी नहीं जानता, लेकिन वो इकबाल कहते हैं कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर। ठीक है, तो फिर हमें ये वाला इकबाल नजर आ गया। तो सिर्फ रियासतों ने नहीं, बल्कि रियासतों के अंदर मुख्तलिफ हुक्मरानों ने भी इकबाल के अलग अलग हिस्से लगाकर अपनी थ्योरी को, अपनी थॉट को जस्टिफाइड करने की कोशिश की। हर ये एक ने बिल्कुल सही बात। इकबाल को एक्सप्लॉइट और अप्रूव मेरी बात सुने, किया। मेरी बात सुने, मैं कहीं पढ़ा था कि 1991-92 में बाबरी मस्जिद के खिलाफ तहरीक चल रही थी, ये बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद वाले, आरएसएस वाले, शिवसेना वाले, ये वहां पर कह रहे थे मुसलमानों को, देखो इकबाल ने तो राम को इमामुल हिंद कहा हुआ है। हम्म। राम राम को इमामुल हिंद कहा है, ऐसी बात नहीं, कहा है, लिखी पड़ी बात है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, मिल सकता है हमें। ठीक है जी, कि राम को भी वो कह रहे हैं कि अहले नजर समझते हैं कि राम इमामुल हिंद। तो इकबाल को यूज करने पर कोई भी यूज कर सकता है। हम्म। कोई भी अप्रोप्रिएट एक्सप्लॉइट कर सकता है। उमर, ये बताइए कि इकबाल की जिंदगी में उन पर कुफर के फतवे भी लगे, तो ये किसने लगाए और क्यों लगे? लेकिन डॉक्टर साहब, ये कुफर के फितवे जो है ना, ये असल में हमें समझना पड़ेगा कि सब कॉन्टिनेंट में 1857 के बाद तीन तरह का रिएक्शन सामने आया था, जब यहाँ पर ब्रिटिश मुकम्मल तौर पर उनका कंट्रोल हो गया, ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, ब्रिटिश इकोनॉमिक सिस्टम। तो तीन तरह का रद्द अमल हमारे सामने आता है। एक फौरी रद्द अमल होता है, जो देवबंद वाले, या हम कह लें कि उस वक्त के उलमा कराम, जो मुकम्मल तौर पर निगेशन में जाते हैं, वेस्ट की वेस्टर्न तालीम, इकोनॉमिक सिस्टम, हर तरह, यानी वो वेस्ट को निगेट करते हैं, कहते हैं हमें कोई जरूरत नहीं है वेस्ट की तरफ देखने के लिए। दूसरा हमें एक्सट्रीम नजर आती है सर सैयद अहमद खान की सूरत में, कि जो अपनी बातनी अप्रोच के साथ साथ जाहिरी अप्रोच में भी कहते हैं कि यार वेस्टर्नाइज होने की जरूरत है, जो छुरी कांटे का खाने के साथ इस्तेमाल करने से लेकर वेस्टर्न एजुकेशन मॉडल, वेस्ट का इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम, हर चीज को इन्हीं हू बहू कबूल करने की बात। कुछ अरसे बाद, यानी 20वीं सेंचुरी के आगाज में मैं कह लूं, तो हमें नजर आता है कई ऐसे मुसलमान जो मिडिल क्लास से अब आ रहे थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर जैसे, उसमें इकबाल का नाम भी है, ये ऐसे मुसलमान थे, या इवन इसमें मदनी जैसे वसीम उतारा लोग भी शामिल थे। बाद में खैर और रवायात भी आ जाती हैं, हजरत मोहानी भी इस कैटेगरी में आ जाते हैं, कि जो दोनों चीजों को साथ साथ लेकर चलना चाह रहे थे, जो कह रहे थे कि यार वेस्टर्न तहजीब के मुस्बत पहलुओं को मान लो, और जो हमारा अपना मजहब कहता है वो तो है ही है, वो तो सही है, उस पर तो हमने चलना ही चलना है, वो तो बिल्कुल दीन जिस तरह होता है अपने दीन के साथ अटैच है, लेकिन मगरबी तहजीब के मुस्बत पहलुओं को भी मान लो। इकबाल यहां पर खड़े थे। वो है ना मौलाना हसरत मोहानी का 3M का तस्वर, मौलाना हसरत मोहानी के बारे में कहा जाता है कि 3M, यानी M फॉर मॉस्को, M फॉर मथुरा, M फॉर मक्का। यानी वो हजरत मोहानी मॉस्को यानी कम्युनिज्म से भी मुतासर है, मक्का इस्लामिस्ट भी है, और मथुरा यानी यहाँ के जो हिंदू अथास है, यहाँ का लोकल जो अप्रोच, लोकल सिविलाइजेशन है, उससे भी जो है मुतासर है। तो इकबाल को थोड़ा सा इस सेंस में भी समझने की जरूरत होगी। बल्कि खुद जो मैं इकबाल पर सबसे ऑथेंटिक काम मानता हूँ उनका, उनके बारे में हमारे यहाँ, वो मानता हूँ डॉक्टर जावेद इकबाल। तो डॉक्टर जावेद इकबाल को भी हमारे यहाँ सही तरह समझा नहीं गया, वो भी बड़ी प्रोग्रेसिव एक चीज थी। डॉक्टर जावेद इकबाल ने जो जिंदा रोद किताब में लिखा ना, 4 वॉल्यूम से बबली किताब है, जिसने इकबाल को समझना हो सबसे पहले उसको ये जिंदा रोद देखनी चाहिए। उस जिंदा रोद किताब में पढ़कर हमें आइडिया हो जाता है यार, ये एक ऐसे शख्स की बात की जा रही है, एक ऐसे आदमी के बारे में कहा जा रहा है जो ना मुकम्मल तौर पर वेस्ट को निगेट करना चाह रहा है और ना अपने दीन में किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज करना चाह रहा है। बल्कि जुवैद इकबाल इंटरेस्टिंग बात करते हैं,
वो ये कहते हैं कि इकबाल आज की मगरबी तहजीब को, जो मिडीवल पीरियड की इस्लामी या अरेबिक सिविलाइजेशन थी, उसकी एक्सटेंशन समझते, उसकी एक्सटेंशन मानते हैं। और इसमें अगर हम देखें इल्मी एतबार से इतनी बात गलत भी नहीं है, क्योंकि मिडीवल पीरियड में जो सारी ग्रीक फिलोसफी थी उसको इन लोगों ने ही संभाला था। जो ये अब्बासिया पीरियड के कई दौर में कई आलम काम कर रहे थे, इन्होंने ही संभाल कर रखा था। तब तो यूरोप के अंदर अरिस्टोटल, सुकरात या ग्रीक फिलोसफर्स, कई ग्रीक फिलोसफर्स को पढ़ने पर पाबंदी थी। कई ग्रीक फिलोसफर्स की किताबों पर बकायदा यानी इनको सजा दी जाती थी किताबें को पढ़िए। लेकिन उस वक्त मिडीवल पीरियड में इस खजाने को संभाला गया, इस इल्मी फिक्री खजाने को संभाला गया। और बाद में फिर जो लैटिन में इसकी ट्रांसलेशन हुई, रेनासांस की सूरत में हमारे सामने आई ये बातें कि यार यूरोप में 15वीं सेंचुरी में इन चीजों को माना जा रहा है, जो ग्रीक सिविलाइजेशन की, ग्रीक मैथोलॉजी, ग्रीक जो फिलोसफी थी, इन सबको बाद में वहां माना गया। तो आपकी बात का शॉर्ट वन लाइन आंसर ये कि इकबाल को समझते हुए हमें ये अंडरस्टैंड अगर हम कर लेंगे यार, वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न उनके सबकॉन्शियस में भी अप्रोच थी कि यार वेस्ट को आज के दौर में नेगेट नहीं किया जा सकता। एक ऐसा शख्स जो अपने दीन को भी साथ लेकर चलना चाहता है। उसमें अब बाद में जहतें बदल जाती हैं। कभी वो मौलाना रूमी के साथ जो है वो अपने आप को अटैच कर रहे हैं, कभी किसके साथ कर रहे हैं, कभी क्या उनकी अप्रोच है, ये जहतें बदल जाती दुरुस्त। उमर, अब ये बताइए, हम अपने प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आ रहे हैं कि रिवायती गुफ्तगू से निकल के, घिसे पिटे जुमलों से निकल के, क्लीशेस को एक तरफ छोड़ के, आज के पाकिस्तान में इकबाल की रेलेवेंस, उनकी अहमियत है, और अगर है तो क्या है? देखिए आज के दौर के जो चैलेंजेस है ना डॉक्टर साहब, वो हैं जिन्हें हम कहते हैं मिलिटरिस्टिक चैलेंज। मिलिटरिस्टिक चैलेंजेस वो मैं नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों की रोटी, लोगों का रोजगार, लोगों के पास तालीम की सहूलियात, सेहत की सहूलियात, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए जो आमदनी के असबाब होते हैं, जो रियासत को मुहैया करने होते हैं, आज के दौर के बड़े चैलेंजेस यही हैं। चाहे वो किसी भी सूरत में हो, चाहे वो कोई इस्लामिस्ट हो, चाहे वो नेशनलिस्ट हो, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे वो लिबरल हो, चैलेंजेस बड़े यही हैं। तो इकबाल की जो राइटिंग्स में, इकबाल की जो खतूत में जो जिना के नाम लिखे हैं खासतौर पर उन्होंने, और इकबाल की जो बाकी शायरी है, उसमें इन पहलुओं को तो उजागर करने की जरूरत है कि जिनमें हम आज के जो असल इश्यूज हैं, इनकी तरफ लोगों की अगर तवज्जो मबजूल कराना चाहते हैं, इनकी तरफ लाना चाहते हैं, तो इकबाल के ये वाले हिस्से तो मैं रेलिवेंट समझता हूँ। लेकिन कई उनकी फिक्री बातें ऐसी जारी बात है, वो आज के दौर में उलमा इकराम के लिए बहस का मौजू तो हो सकती हैं, लेकिन उसका आम आदमी की जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं बनता। तो बिल्कुल इकबाल को हम कर सकते हैं। जो इकबाल की शायरी में, इकबाल की राइटिंग्स के ऐसे हिस्से हैं जिसमें वो आज के इश्यूज को, जो असल इंसान का इशू है, उस पर जो है वो बातचीत करते दिखाई देते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह कि इकबाल ने मैशत पर भी कलम चलाया हुआ है। इल्मुल इक्साद किताब जो है इकबाल ने 1903 में किताब मिल जाती है, ये भी इल्मुल इक्साद किताब, यानी मैशत में भी उन्होंने जो है वो इस तरह काम किया। बहरहाल जिसमें आपने बात की, मैं ये समझता हूँ कि जो आज के इश्यूज रेलिवेंट हैं उनमें इकबाल की शायरी, इकबाल की थॉट का बिल्कुल सहारा लिया जा सकता है, नो डाउट। जी हाँ। आज की नशिस्त को हम यहाँ बर्खास्त करते हैं। उमर जावेद, आपकी वर्चुअल तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया।